Yes, good morning to all of you. Let us quickly go ahead with our discussion on the topic of registration of partnership firm. Yesterday we have discussed about the basic point. Registration is not compulsory under the Indian Partnership Act, although it is compulsory under the British Partnership Act. In India, it is kept to be optional. We even discussed the probable logic why British must have kept it optional in India. We also discussed that the provisions are made in such a manner that it is having a persuasive ability to tell the partners that it is better in their own interest to register the partnership firm. Then we studied the disqualifications which will be suffered by the partnership firm if it is not registered. So disqualifications is the major way of persuading the partners that it is better for them to register the partnership firm. However, there are certain exceptions to these disqualifications. What is the meaning of that? कि भले ही आपका partnership firm registered नहीं है, तो भी certain disqualifications don't apply to you. That means it will be still treated as a partnership firm, although it is not registered. मतलब it is purely that अपना पुराना एग्जांपल यूज करना करेगा तो it is purely that उदित नारायण वाला शादी जो रजिस्टर नहीं हुआ किधर भी, पर फिर भी हम बोलेंगे कि ये शादी है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So although you have done a partnership and you have not registered the same, so no government authority knows that this agreement took place. Still, we will accept that this agreement is a valid agreement. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो एग्रीमेंट की वजह से क्रिएट होने वाले रिलेशनशिप को हम लोग सेपरेट ट्रीट करने को तैयार है. ये फॉर्म है ऐसा एक्सेप्ट करने को तैयार है. कौन सी चीजें हम एक्सेप्ट करेंगे? Exceptions: non-registration of firm does not, however, affect the following rights. The right of the third parties to sue the firm for or any partner. This is not actually speaking a right to the partnership firm. This is a right to the third parties. So, मतलब actually speaking, it's an obligation for the partnership firm. It's a difficulty for the partnership firm. कि भले ही हम लोग फॉर्म करके रजिस्टर हुए नहीं है, तो भी लोग हमको फॉर्म करके ट्रीट कर सकते हैं और फॉर्म करके हमारे साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. और वो ट्रांजेक्शन में अगर हमने कुछ ब्रीच किया रहेगा, तो उस ब्रीच के लिए उनके पास रेमेडी है, तो वो केस फाइल कर सकते हैं. तो बोलेंगे किसके खिलाफ फाइल करोगे? केस फाइल करने का किसके खिलाफ करोगे? रिलेशनशिप तो है ही नहीं, रजिस्टर्ड है ही नहीं. हमारा रिलेशनशिप है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं, तो केस किसके खिलाफ करेगा? In that case, partnership बोलते नहीं, but the right of the third parties to sue the firm or any one partner is also still continue. It is not affected by non-registration. The right of the partners to sue for dissolution of the firm or for the settlement of accounts of a dissolved firm or for realization of the property of a dissolved firm. So partners का आपस में एक दूसरे के खिलाफ sue करने का अधिकार. And for what? Basically for a dissolution. कि मुझे इस फॉर्म में रहना नहीं है. ऊपर आलिया भट्ट कैसी बोलती है, मुझे घर जाना है करके. कौन सा तो पिक्चर में वैसे कौन सा? हाँ, राजी की गाजी जो भी कुछ रहेगा वो. तो जैसा बोलते कि मुझे घर जाना है, वैसा सपोज कोई पार्टनर बोलते कि बस हो गया, मुझे अभी पार्टनरशिप में रहना नहीं है, बाकी के पार्टनर्स को फोर्स नहीं कर सकते. इनफैक्ट ही कैन sue the partners for the purpose of dissolution. कि आपने मेरा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और पार्टनरशिप फॉर्म जिस मकसद के लिए चालू किया था उस मकसद के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो आई डोंट वांट माइसेल्फ टू बी एसोसिएटेड टू दिस फॉर्म. एट द सेम टाइम आई डोंट वांट माइसेल्फ टू बी एसोसिएटेड टू एनी एक्टिविटीज ऑफ दिस फॉर्म. इट इज बेटर दैट द फॉर्म शुड बी डिसॉल्व्ड. तुम सुनते नहीं हो तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ. बोलेंगे कोर्ट के खिलाफ जाओगे तो क्या करने को जाओगे? डिसॉल्व करने को जाऊंगा. डिसॉल्व क्या करने को जाओगे? फॉर्म डिसॉल्व करने को जाऊंगा. कौन सा फॉर्म? कानून को तो पता ही नहीं है फॉर्म है करके. अगर कानून को ये फॉर्म है ये पता ही नहीं है, तो इस फॉर्म को डिसॉल्व करो ऐसा कानून बोल कैसे सकता है? जो है ये कानून को पता ही नहीं है, उसको डिसॉल्व करने के लिए कानून ऑर्डर कैसे दे सकता है? तो हमने बोला नहीं, बट दिस राइट ऑफ द पार्टनर टू sue for a dissolution is still in existence despite of the fact that the firm is not registered. तो जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कानून की नजर में एक्चुअली स्पीकिंग एग्जिस्टेंस में आया हुआ नहीं है, उसको डिसॉल्व करने के लिए कानून परमिशन दे सकता है क्या? दे सकता है. दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोविजन इफ यू ट्राई टू अप्लाई टू योर रियल लाइफ. देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड यूथेनासिया. इसको पता है क्या मतलब उसका? यूथेनासिया करके, सॉरी, यस, राइट टू डाई. मुझे लगता है कि बस हो गया, अब मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि वो मुझे लाइफ सपोर्ट में रखने का नहीं है, मुझे कंपलसरी मरने का. तो this right is by default not available in many countries. Almost all countries don't allow that. Very few countries are thinking of allowing that. तुम्हारे जिंदगी के ऊपर तुम्हारा हक है, इसका दूसरा मतलब तुम्हारे मौत के ऊपर भी तुम्हारा हक है. The general logic which the law follows for not allowing this right is that the law has not given you life. Life is given by God. Law has not given you life, so life does not have the authority. Sorry, law does not have the authority to take away your life.
शायद तुम अभी कोमेटोज रहोगे, तो मतलब तुम नहीं, कोई पर्सन अभी कोमेटोज रहेगा, कोमा में चला गया रहेगा, तो बाकी लोगों के हिसाब से शायद वो जिंदा नहीं है, फिर उसका कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। बट भगवान के लिए घर में देर नहीं है, अंधेर है, ये अंधेर नहीं है, देर है, कुछ तो रह सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। भगवान के कुछ स्पेशल प्लान रह सकते हैं, और उस प्लान के तहत शायद ये कोमा में शायद 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, बाद में फिर से बार जी उठेगा और कुछ तो नया चीज करके दिखाएगा, हु नोज। सो वी कैन स्टॉप द विल ऑफ गॉड बाय गिविंग द राइट टू यू to take away your own life. In fact, your own life is not given to you by you yourself. Your life is given to you by your parents. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जो हमने चालू किया नहीं है, वो हमको चालू बंद करने का अधिकार नहीं है. This is the basic principle which is followed by all the different countries for not allowing a person to take away his own life or her own life. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? But here you will find that कानून क्या बोलता है कि आपका एग्रीमेंट जो है, उसके से जो रिलेशनशिप आ गया है, वो एग्जिस्टेंस में है, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बंद करने के लिए हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं क्या? यस. लेकिन ये भी कैसे है? जनरली स्यूमोटो नहीं है, ये सिचुएशन किधर से आया हुआ है? अगर एग्रीमेंट किसके बीच में था? पार्टनर्स के बीच में. तो उस पार्टनरशिप फॉर्म को एग्जिस्टेंस में लाया किसने? पार्टनर्स ने. भले ही कानून को पता नहीं, गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आज वो उसको वापस ले सकता है क्या? ले सकता है. जिस तरह से भगवान अगर तुमको जन्म देता है तो भगवान तुमको वापस बुला सकता है, उस तरह से पार्टनर्स अगर तुमको जन्म देते तो पार्टनर्स तुमको वापस बुला सकते हैं, और बाकी के पार्टनर उसको रोक नहीं सकते हैं. अगर रोकते रहेंगे तो वो हमारे पास आता है और बोलता है कि मैं बाकी पार्टनर्स को स्यू करना चाहता हूं फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन. तो कानून बोलेगा ठीक है, हम मदद करने को तैयार है. व्हाट वाज स्टार्टेड बाय यू, इफ यू वांट टू एंड इट, अदर्स कैन नॉट स्टॉप. एंड इफ अदर्स आर ट्राइंग टू स्टॉप इट, इन दैट केस वी विल हेल्प यू टू नॉट टू गेट स्टॉप फ्रॉम देम. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? बेसिक आइडिया समझ में आया क्या है करके? सो ये मत सोचो कि सर जो कानून की नजर में है ही नहीं, उसको डिसॉल्व करने का केस लड़ने के लिए कानून मदद कैसे कर सकता है? कानून उसको डिसॉल्व करने के केस के लिए मदद करता है. एक्चुअली स्पीकिंग, कानून जिसने उसको जन्म दिया उसको उस जिंदगी के ऊपर हक है ये मानता है. जन्म किसने दिया? पार्टनर्स ने दिया. तो पार्टनर्स को उसका जिंदगी वापस लेने का अधिकार है रिलेशनशिप का. आपको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो पॉइंट कौन सा था? द राइट ऑफ द पार्टनर्स टू sue फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म और फॉर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ अ डिसॉल्व्ड फॉर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व्ड फॉर्म. पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है, कानून ने बीच में टांग अड़ा है, और जो फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं था उस फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए मदद दे दिया है. जिस पार्टनर को डिसोल्यूशन चाहिए था वो खुश हो गए, जिन पार्टनर को डिसोल्यूशन नहीं चाहिए था उनको तकलीफ हो रहा है. अब वो अटकाना चाहते हैं उस पार्टनर को जिसके से डिसोल्यूशन हो गया. तो जहां तो उसके क्या करता है? अच्छा डिसॉल्व है, डिसॉल्व, बट वो जो प्रॉपर्टी है ना वो फट से बेचेंगे नहीं, डिले करते रहेंगे, पेंडिंग रखते रहेंगे, ट्रांजेक्शन को खींचते रहेंगे by giving lot of different reasons. नहीं इतना जल्दी क्या को बेचने का, थोड़ा और रुकेंगे तो अच्छा प्राइस आएगा, तो अल्टीमेटली अपने सबके फायदे की बात है. ऐसा कुछ कर करके उस ट्रांजैक्शन को डिले करते जाएंगे. इन दैट केस ही कैन सी अगेन, तो बोलेंगे अभी क्या कर सकते, जिस चीज को तूने जन्म दिया था उस चीज का जन्म जिंदगी तो निकाल दिया, अभी खत्म हो गया सब चीज, अब क्या झगड़ा कर रहा है? तो अभी झगड़ा कौन सा चीज का है? फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अ डिसॉल्व्ड फॉर्म. तुम रियलाइजेशन करते नहीं रहोगे जानबूझ के, तो उसको रियलाइजेशन करवा के लेने के लिए वो क्या करेगा? कोर्ट के पास फिर से जा सकता है और स्यू कर सकता है. किसको स्यू कर सकता है? अदर पार्टनर्स को. किस चीज के लिए? डिसॉल्व्ड फॉर्म के एसेट्स को रियलाइज करवाओ, इसके लिए. तो कुछ समझ में कैसे बोल रहा हूं? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनिंग रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन. पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया रहेगा तो भी अगर कोई एक ऑफिशियल असाइनी है तो कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया रहेगा. किसके लिए? टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन. मतलब सिचुएशन क्या है? एबीसी का 3 लोगों का पार्टनरशिप हो, उसके अंदर सी क्या है? इंसॉल्वेंट पार्टनर. इंसॉल्वेंट पार्टनर होने के से क्या हो रहा है? उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उसके पर्सनल लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का काम चालू हो गया. उसके लिए कोर्ट ने क्या कर दिया? लिक्विडेटर को अपॉइंट किया हुआ है, ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया हुआ है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उनको उसको क्या बोला? जिम्मेदारी क्या दिया हुआ है? उसको जिम्मेदारी दिया हुआ है कि भैया क्या कर, सी के सारे प्राइवेट एसेट को बेच दे और उसमें से जो पैसा आएगा उसके प्राइवेट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दे, काम खत्म करवा दे. ये कोर्ट ने किसको बोला है? सी के ऑफिशियल रिसीवर को बोला हुआ है. तो सी का ऑफिशियल रिसीवर देखता है क्या क्या एसेट्स है तुम्हारे पास. पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखा रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी. तो सी का कैपिटल पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और अगर तुम सी के खुद के बैलेंस शीट में जाओगे, फर्म के बैलेंस शीट में नहीं, सी के बैलेंस शीट में जाओगे, तो पार्टनरशिप फर्म में उसने जो कैपिटल डाला हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज
हिज एसेट। हमको लिक्विडेशन काम चालू करने का है। लिक्विडेशन के काम में क्या किया जाता है, उसके जो जो एसेट्स उसको बेचा जाता है, उसको रियलाइज किया जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है, इन कैश किया जाता है, और उसमें से उसके लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो उसके बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म। क्या समझ आएगा कैसे बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म है। तो बोलता है अभी ये पैसा मुझे चाहिए, फॉर्म के पास से पैसा लेके आओ। तो फॉर्म बोलते क्या रहे, लेकिन हम फॉर्म है, ये तुझे कैसे पता चला, तू तो गवर्नमेंट ऑफिसर, तुझे तो कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ। हमने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे फॉर्म को रजिस्टर किया ही नहीं, तो हमारी ये फॉर्म है किसी को पता ही नहीं, गवर्नमेंट की नजर में हम एग्जिस्टेंस में नहीं। जिस तरह से तुम बोलते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट देयर। इफ यू विल नॉट फुलफिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यू विल क्रिएट बैड विल फॉर योरसेल्फ। You may not be in a position to go to court of law to get compensated for the same, but you will always create ill will in the minds of people with whom you are doing social contract and you are not fulfilling the same. मेरा बर्थडे है, जैसे एग्जांपल, आज नहीं है, लेकिन सपोज मेरा बर्थडे है और मैं तुम सब लोगों को बोला मेरे घर में पार्टी पे आ जाओ, बीबी को बोल दिया मैंने मेरे घर में पार्टी रखने वाले हैं, मेरे सब बच्चे आने वाले, 68 69 जो भी कुछ बच्चे रहेंगे सारे के सारे आएंगे करके, तो सबके लिए मस्त से खाना वाना पका। उसने 68 69 बच्चों के लिए और घर के सब बाकी के रिलेटिव्स के लिए उसके सबसे बड़ा खाना पका के रखा, और तुम कोई आए नहीं। यार एक क्लास में पकाता है, घर में से उधर जाएगा तो अपने को खाना खिला खिला के अलग अलग लॉजिक सिखाएगा, तो कुछ वीडियो देखने को बोलेगा, झंझट नहीं चाहिए करेगा, तो nobody comes. What will happen? There will be an ill will. I cannot go to the court of law, file a suit against all of you that you did not come, but yes, I'll feel hurt. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मेरा जो तुम्हारे पास प्यार से अलग अलग चीजें सिखाने का जो प्यार रहेगा शायद वो कम हो जाएगा, वो तुम्हें जान रहेगा, इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं, आजकल की दुनिया अलग हो गई, शायद में पुराने जमाने का हो गया, ऐसा कुछ सोच कुछ मेरा शायद इल विल क्रिएट हो जाएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, है। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि सबसे कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वही लॉजिक यहाँ पे कोई यूज करने का कोशिश करेगा, बोलेगा सर हमारा तो पार्टनरशिप है क्या, हाँ वो हम पार्टनर्स को मालूम, लेकिन आपको किधर मालूम, आपके हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिचुएशन है, तो उसको आप देखो ही मत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए लॉ यूज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे इस पार्टनरशिप फॉर्म को आप पार्टनरशिप फॉर्म ट्रीट करने के आपको अधिकार ही नहीं, क्योंकि हमने इसको रजिस्टर ही किया हुआ नहीं। तो हमने बोलते नहीं यार, हमने डेफिनेशन ही वो दिया हुआ था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर। हमने किधर नहीं बोला हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? हमने बोला एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप मानने को तैयार है। म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो है ना तो पार्टनरशिप है। फॉर्म है क्या, हाँ फॉर्म है, और रजिस्टर करने का बाकी है। रजिस्टर न करने के आपको डिसेबिलिटीज आ चुके हैं, आपको डिसेबिलिटीज आ चुके हैं, हमको डिसेबिलिटीज आए हुए नहीं। थर्ड पार्टीज आर नॉट गोइंग टू गेट डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ यू नॉन रजिस्टरिंग योर फॉर्म। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो वो जो ऑफिशियल रिसीवर रहेगा सी का, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ऑफिशियल रिसीवर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, सी इंसॉल्वेंट हुआ है, इसके लिए ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया, और ऑफिशियल रिसीवर क्या कर रहा है, सी का एसेट साइड चेक कर रहा है। एसेट साइड में उसको क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म, और उस पार्टनरशिप फॉर्म के इन्वेस्टमेंट को पकड़ने के लिए आया पार्टनरशिप फॉर्म के पास। बोलते पार्टनरशिप फॉर्म पैसा दो, वो बोलते है तो हमको देख नहीं सकता है, वो बोलता है मैं देख सकता हूँ, मेरे पास लाल कलर का चश्मा है। लाल कलर का चश्मा का सिग्निफिकेंस मालूम है क्या? मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा रहेगा तो समझेगा मैं क्या बोलता हूँ। पूरी दुनिया को दिखता नहीं, लेकिन लाल कलर का चश्मा डालेगा तो दिखता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। तो रजिस्टर नहीं किया मतलब फॉर्म क्या कर रही है, मिस्टर इंडिया का गाड़ी को चला रही है, तो बोल रही है कि हम किसी को दिखते नहीं। तो लोग बोलते जब तक तुमने हमको सीव करना है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने तुमको सीव करना है तो हम कर सकते हैं। पार्टनर भी तुमको सीव कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनर भी तुमको सीव कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंट्स सेटलमेंट, पार्टनर भी तुमको सीव कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म व्हिच इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड। सिमिलरली ऑफिशियल लिक्विडेटर और रिसीवर ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन आल्सो सीव द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ द मनी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर व्हिच इज ड्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, द पावर ऑफ हो गया ना, ठीक है। द राइट टू स्यू और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। ये एक राइट तुम्हारा अभी भी रखा है हमने, सेट ऑफ क्लेम करने का। सेट ऑफ मतलब क्या, कल मैंने बोला था अगर याद रहेगा तो, सेट ऑफ क्लेम करने के लिए क्या जरूरी है, म्यूचुअल इंडेटेडनेस जरूरी है। मतलब जो पार्टी अपना डेटर है वही पार्टी अपना क्रेडिटर है। तो इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई दैट ये दो वालों ने ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करने के बजाय इसको सिंगल ट्रांजैक्शन कंसीडर करके नेट ऑफ कैलकुलेट करने का, नेट अमाउंट कैलकुलेट करने का और नेट अमाउंट को सेटल करने का, बोलने का दोनों मेन ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड। लेकिन ये वाला नेट ऑफ करने का राइट तुम्हारा कब कैंसिल हो जाता है, इफ द अमाउंट इज बिगर देन 100। बट इसी का दूसरा मतलब द अमाउंट इज लेसर देन 100, तो राइट अभी भी कंटिन्यूड है। तो तुम मुझे 150 रुपए देने के बाकी थे, मैं तुमको 175 रुपए देने का बाकी था, तो 25 रुपए बाकी है, हम बोल के ठीक है फिर ऐसा चलो, दैट मींस इट इज बिलो 100, so we can settle that part.
Next part. The right to suit and proceeding instituted by legal representatives or heirs of the deceased partner, of a firm for accounts of the firm or to realize the property of the firm. तो सिर्फ पार्टनर स्यू कर सकते हैं ऐसा बात नहीं है, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके जो लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी तुमको स्यू कर सकते हैं. ओके, तो डिस्क्वालिफिकेशन डजंट अप्लाई टू दिस डिफरेंट सिचुएशंस. ऐसा मैंने बोल कर रखा है. एग्जांपल नंबर 1, A and company is registered as a partnership firm in 2017 with A, B and C as partners. In 2018 A dies. In 2019 B and C sue X in the name and on behalf of A and company without fresh registration. Now the first question for our consideration is whether the suit is maintainable. As regards the question whether is in the case of a registered firm whose business was carried on after its dissolution by death of one of the partners, a suit can be filed by the remaining partners in respect of any subsequent dealings or transactions without notifying to the registrar of the firm the changes in the constitution of the firm. It was decided that the remaining partners should sue in respect of such subsequent dealings or transactions, even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar. A test applied in the cases was whether the plaintiff म्हणजे काय, जो कंप्लेंट करता है वो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिफेंड. शाबाश, वेरी गुड. सो कंप्लेंट जिसके खिलाफ किया जाता है वो क्या करेगा, डिफेंड करेगा कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट गलत किया हुआ है करके. ओके, सो ऑफेंडेंट और डिफेंडेंट नहीं करने का. ओके, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट नहीं बोलने का, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोलने का. ओके, next part. The test applied in the cases was whether the plaintiff satisfied the only two requirements of section 16 and subsection 2 of the act, namely the suit must be instituted by or on behalf of the firm which had been registered and the person suing had been shown as a partner in the register of firms in view of the position of law. The suit in this case suit is in the case by B and C against X in the name of and on behalf of A and company is still maintainable. Situation क्या बोला था देखो जरा. A and company नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है क्या, रजिस्टर्ड है. कब रजिस्टर हुआ था, 2017 में. उसमें किसके नाम थे, एबीसी 3 पार्टनर के नाम थे. 2017 में पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो चुका है. फॉर्म का नाम क्या रखा हुआ है, ए एंड कंपनी, और फॉर्म के पार्टनर्स कौन है, ए बी एंड सी. लेकिन बाद में क्या हो गया, 2018 में कुछ तो गड़बड़ हो गई. 2018 में पार्टनरशिप फॉर्म का काम करते करते एक को हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर हो गया. इन 2019 बी एंड सी स्यू एक्स, फिर बी एंड सी ने स्यू कर दिया एक्स को. Who's the third party? X कौन है third party? B and C have sued X in the name of and on behalf of A and company. तो A and company पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे B and C जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, लाइव पार्टनर्स, उन्होंने X को केस फाइल किया हुआ on behalf of A and company. It is not a personal case. It's a case where the plaintiff is partnership firm. यार समझ सकते क्या बोल रहा हूँ. डिफेंडेंट कौन है, X and company, जो भी कुछ है विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन. बट गड़बड़ किधर हो गया, ए के एक्सपायरी के बाद उन्होंने रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करने को भूल गए हैं कि ए हैज एक्सपायर्ड. सो एबीसी वर 3 पार्टनर्स. रेशियो वाज प्रोबब्ली 1:1:1. ए हैज एक्सपायर्ड. The continuing ratio is now 1:1. They have forgotten to tell to the registrar that A has died. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. And now the first question for our consideration is whether the suit is maintainable or not. तो सूट करना पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं. बोलता है तुम्हारा फॉर्म रजिस्टर्ड है क्या, हाँ रजिस्टर्ड था. अभी एक छोटा पार्ट रह गया, कौन सा वाला, one of the partner who has expired, you have failed to communicate it to the registrar. But who is filing the case, B and C are filing the case. Whether the name of B and C is still registered with the registrar as the existing partners when the firm was registered, yes. That means the people whose name is registered with the registrar as partners are suing on behalf of firm. हम बोलेंगे चले, so you can still file the case. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, got the idea? Next part. I will now example what difference would it make if in 2019 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration. अभी क्या हो गया है, A एक्सपायर हो गया था, बताने को भूल गए थे. बाद में 2018 में कुछ हुआ नहीं, काम चालू है. 2019 में उन्होंने D को एडमिट कर लिया. D को एडमिट कर दिया, फिर से उन्होंने कम्युनिकेट करना चाहिए कि A एक्सपायर हो चुका है और D आ चुका है, बताने को भूल गए फिर से एक बार. और उसके बाद में क्या कर रहे हैं वो लोग, X के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं. तो what will happen? Where a new partner is introduced, the fact is to be notified to the registrar, who shall make a record of the notice in the entry relating to the firm of register of firms. Therefore, the firm cannot sue as D's name has not been entered in the register of firms. It was pointed out in the second requirement, the phrase person suing means persons in the sense of individuals whose names appear in the register as partners and who must be all partners in the firm at the date of suit.
सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैक्सिमम क्या कर सकते हैं बोलो, अभी इमीडिएटली रजिस्टर करवा के ले सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन करवा के ले सकते हैं, बाद में केस फाइल करवा सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन किए बिना, पुराने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड किए बिना वो लोग नहीं कर सकते। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी क्लियर हो गया? अभी कोई लोग एक छोटा दिमाग चलाते हैं, सर हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या कि बी, सी और डी 3 पार्टनर्स है, तो बी ने अकेले ने केस फाइल करना, सी एंड डी ने नहीं करने का। हम बोलेंगे बी कौन है यहाँ पे, इज अ पार्टनर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? किसके बिहाफ पे? फॉर्म के बिहाफ। कौन सा फॉर्म? ए एंड कंपनी नाम का फॉर्म जिसके अंदर ए नहीं है और ऊपर से डी आ चुका है और डी का नाम उधर नहीं है, दैट मींस दिस फॉर्म इज नॉट नोन टू द रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप, सो मिस्टर बी कैन नॉट फाइल द केस। सबको समझा क्या? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। वो बोलेगा सर ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म करता हूं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, मिस्टर बी कैन नॉट फाइल द केस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो। पर्सनल केस में कर सकता है, पर्सनल केस में कर ही नहीं सकता बिकॉज़ ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। A stranger cannot sue over the contract. तुमको मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट में सिखाया होगा। Who can sue for the contract? Party to the contract. Who can sue for the contract? So if the party is the firm, then only firm can sue. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और अगर कोई पार्टनर बोलता है मैं फर्म के बिहाफ पे sue करता हूँ, बोलेंगे ठीक है, that means you should be on behalf of the firm and the firm should be registered and all the names of the partners should be with the registrar. अभी वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसके लिए चुप बैठ, पहले डील को रजिस्टर करवा के ले लो, उसके बाद में जो झगड़ा करना है कर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। एनी डिफिकल्टी? सब कुछ समझा गया? ठीक है, चल नेक्स्ट पार्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सेक्शन 39 टू सबसेक्शन 47, सॉरी टू सेक्शन 47, 39 से लेकर 47 अपना एक कल तक पूरा हो जाना चाहिए सारा का सारा। होगा क्या? नहीं, क्योंकि बाद में एलएलपी कर रहा है, एलएलपी भी थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है एलएलपी। चलिए, shall I start? According to section 39 of the Indian Partnership Act of 1932, the dissolution of partnership between all the partners of a firm is called a dissolution of firm. Simple. Dissolution किसको बोलने का? Dissolution of the partnership between all partners. So only one partner is retiring, then it is not dissolution of the firm, then it is dissolution of partnership. Whereas if all partners are at the same time bringing an end to the relationship which was already started by them, then it is called a dissolution of the firm. Thus, dissolution of firm means discontinuation of legal relationship existing between all the partners of the firm. But when only one or more of the partners retires or becomes incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency, or insanity, the partnership, that is the relationship between such partner and others, is dissolved, but the rest may decide to continue. In such cases, there is a practice no dissolution of firm. There is in practice no dissolution of firm. The particular partner goes out, but the remaining partners carry on the business of the firm. It is called as dissolution of the partnership. In case of dissolution of the firm, on the other hand, the whole firm is dissolved. The partnership terminates as between each and every partner of the firm. ये सब चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत सारा बार, अकाउंट्स लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी भी ये पैराग्राफ पढ़ने के पहले मैंने डिस्कस करके रखा था. सो नाउ देयर इज अ डिस्टिंक्शन पॉइंट दे हैव गिवन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पहली बात क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रहेगा तो इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रहेगा तो इट डज नॉट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस. द बिजनेस कंटिन्यूज. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, वाइंडिंग अप. It involves winding up of the firm and requires realization of assets and settlement of liabilities. क्योंकि you are thinking of dissolution of the firm, तो सारे के सारे assets को बेच दो और बाद में liabilities को pay up करो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी बन जाता है. Whereas dissolution of partnership करोगे तो क्या हो जाएगा? It involves only reconstitution and requires only revaluation of assets and liabilities. इसके लिए admission, retirement, death में क्या होता है? Revaluation account. और dissolution में क्या होता है? Realization account. किधर से आता है? यहाँ से आता है. पहले वो सीखा, बाद में ये सीखा. इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट से बताया लॉ ने क्रिएट किया, नहीं, लॉ ने क्रिएट किया और बाद में अकाउंट से फॉलो किया. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप यू रिमेंबर माय एनालॉजी व्हिच आई हैड गिवन टू यू. वो 3 ड्राइवर का कार है, एक के पीछे खड़े हैं. सबसे पहले कौन बैठा हुआ है? इकोनॉमिक्स. उसके पीछे कौन है? लॉ. उसके पीछे कौन बैठा है? गुंडा था. उस पिक्चर का कुछ तो सीन था और वो शायद वहां पे जेल पे आता रहता है, गुस्सा आता रहता, तो बाकी सब बहुत सारे लोग उसको फटाफट नमस्कार करते रहते हैं. और अच्छा, गोला पिक्चर का तो अजय देवगन के सिर के ऊपर ऐसा अकाउंट्स, ऐसा एक वर्ड ऐसा नाचता रहता है करके, और इधर मैथ्स, इधर कुछ तो लॉ, इधर इकोनॉमिक्स.
वो गड़बड़ वाली बात याद रखना। अकाउंट्स इतना बड़ा दादा नहीं है, अकाउंट्स अच्छा वाला है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अकाउंट्स तुम्हारा फ्रेंड है बट बड़ा दादा नहीं। बड़ा दादा कौन है वाला है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दुनिया भर की चीजों को चेंज कर सकता है लास्ट मोमेंट को। इकोनॉमिक्स का कौन सा ताकत है? रूल्स को चेंज करने का ताकत है। अकाउंट्स क्या बोलेगा? रूल दिया, रूल के हिसाब से खेलो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इकोनॉमिक्स क्या करेगा? रूल्स को चेंज करके दिखाएगा। क्रेडिट स्विस बैंक में क्या किया था? रूल्स को चेंज करके दिखाया। वो किसने किया? रूल्स। इकोनॉमिक्स ने चेंज कर दिया। बोला शेयर होल्डर्स को आवाज देने का नहीं, मतलब लॉ को भी बोला चलो चुप बैठो। शेयर होल्डर्स ऑफ यूबीएस बोले चुप बैठो, चुप बैठो, हम जो बोलेंगे करना पड़ेगा। क्या समझ सकते कैसे बोल रहे हो? इकोनॉमिक्स कैन चेंज द गेम कंप्लीटली। इकोनॉमिक्स कैसी बात है? टेस्ट क्रिकेट नहीं, अभी चलो वनडे खेलेंगे, नहीं वनडे नहीं, चलो 2020 खेलेंगे। समझ समझ कैसे बोल रहा हूँ? तो पूरा पूरा गेम को चेंज कर सकता है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बार वो नया गेम चालू कर दिया तो इसमें रूल्स कैसे बनाने का कौन डिसाइड करेगा? लॉ। फिर रूल्स फॉलो किए कि नहीं किया कौन डिसाइड करेगा? अकाउंट्स। और अकाउंट्स में गड़बड़ क्या होता है? बच्चा लोगों को लगता है अकाउंट बड़ा सुप्रीम है, इसलिए हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा। तो दिए हुए रूल्स को बराबर से फॉलो करते नहीं, अल्टीमेटली फ्रॉड होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फ्रॉड के बाद में फिर क्या हो जाता है? सारा का सारा गेम टूट जाता है। टूटा तो फिर से नया गेम क्रिएट करना पड़ता है। वो नया गेम क्रिएट करने का ताकत अकाउंट्स के पास नहीं, वो ताकत फिर से किसके पास है? इकोनॉमिक्स के पास है। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट स्विस ने क्या किया रहेगा, उधर के अकाउंटेंट्स ने क्या किया रहेगा, उधर के ऑडिटर्स ने क्या किया रहेगा, तो तुमको जो बोला उसके हिसाब से पूरा पूरा रिकॉर्ड करो। इसमें जो प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करने का, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करने का, कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, वो प्रिंसिपल्स को तोड़ते गए, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते गए, थोड़ा चलता ना करके करते गए। तो इन दैट केस अल्टीमेटली जब तक सीसा है वो एक जगह पे सब कुछ ठीक ठाक रखा हुआ है और दूसरी जगह पे सब कुछ ठीक ठाक रखा, मस्त से बैलेंस है। अभी तुम थोड़ा सा यहाँ से वहां पर डालोगे, थोड़ा सा वहां पे वहां डालोगे, जब थोड़ा थोड़ा रहता है तो शुरुआत में कुछ बड़ा फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो गिर जाता है सारा कैसे सिस्टम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इवन फॉर अकाउंट्स ऑल्सो। कि जब सीए इंटर में तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम का टॉपिक आएगा, बोरिंग लगता है, कंटाला आता है, थियरी है सर, इतना कौन करेगा। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विजुअलाइज करने को डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हमने क्लासरूम में बैठे हुए बिजनेस देखा नहीं, बिजनेस में कौन सा अलग अलग का सिचुएशन आ सकता है अपने को पता नहीं, तो उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना चाहिए वो विजुअलाइज करने को आता नहीं। और अगर ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ी हो सकती है वो भी विजुअलाइज करने को आता नहीं। सो वी से जाना दो यार, कुछ तो रट्टा मारने का और कुछ तो लिख के आने का, and ultimately that becomes difficult. So try to develop your ability of visualizing the things more systematically. Anyway, let me go ahead now. Winding up. वो हो गया अपना ना, yes, revaluation हो गया. Order of the court. The firm may be dissolved by the order of the court. Dissolution of partnership is not ordered by the court. It is either by way of admission, or by way of retirement, or by way of death, or by way of change in PSR. Sorry. Yes, expulsion भी हो सकता है. Next is scope. It necessarily involves dissolution of partnership. फॉर्म को डिसॉल्व करना है मतलब पार्टनरशिप का तो डिसॉल्व होना ही पड़े, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप है। जब फॉर्म ही डिसॉल्व हो गई, उस रिलेशनशिप को यूज करके जो बिजनेस चालू किया था वो बिजनेस ही टूट गया, तो रिलेशनशिप भी रहने वाला नहीं। नेक्स्ट पार्ट, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। जब तुम सिर्फ पार्टनरशिप को चेंज करते हो, फॉर्म को तोड़ते नहीं हो, इन दैट केस बिजनेस में स्टिल कंटिन्यू। एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट, फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स। इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द फॉर्म, whereas in case of dissolution of partnership, there is no final closure. It does not involve final closure of the books of the firm. So what are the modes of dissolution of the partnership firm? We are not focusing on dissolution of partnership. We are focusing on dissolution of firm. उसके लिए कितने अलग अलग मोड्स है? So dissolution of partnership firm may be in any of the following ways. पहले कौन सा रहेगा? पहला बड़ा पॉइंट, dissolution without the order of the court or voluntary dissolution. कोर्ट ने बीच में टांग नहीं अड़ाई, कोर्ट ने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तुमने आपस में चालू किया, तुमने आपस में बंद कर दिया, वॉलंटरीली। नो एक्शन इज टेकन बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू आर डिसाइडिंग द थिंग ऑन योर ओन। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमने चालू किया, हमने बंद किया। जिस तरह से हम क्या करते हैं, 10 दिन का गणपति नहीं, हमारे पास 7 दिन का गणपति नहीं, हमारे पास 5 दिन का, हमारे पास 3 दिन का, हमारे पास 1.5 दिन का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुमने बुलाया, पूजा वूजा करो, बाद में बोलो आवानन न जाना, भी बाद में छोड़ देने का, फिर से विसर्जन कर देने का, बोलने का कि हमारा कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, मिस्टेक हुआ रहेगा तो भी जरा माफ कर देना भैया, अगले साल फिर से आ जाना। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो यू हैव स्टार्टेड, यू ओनली वॉलंटरली डिसाइडेड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग, देयर इज नो पर्टिकुलर डिक्टेट गिवन बाय लॉ। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी
डिसोल्यूशन। जो तुमने स्टार्ट किया वो तुमको बंद करना हमेशा अलाउड है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड बड़ा वाला पॉइंट कौन सा है? डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब तुम कंटिन्यू करना चाहते थे, बट कानून बोलते हैं बस नॉट अलाउड। दिस इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज एन ऑर्डिनरी सिचुएशन, दिस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। जो लोगों ने खुद ब खुद मिलकर चालू किया हुआ है, ऐसा चालू करने को हमने परमिशन दिया हुआ है, उस परमिटेड एक्टिविटी को हम खुद ब खुद बोलेंगे कि तुमको अच्छा लगता रहेगा तो भाई हमको नहीं अच्छा लगता बंद करो, इज ए वेरी डेंजरस थिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू डू नॉट वांट टू गिव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू द कोर्ट ऑफ लॉ और टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू स्टॉप समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस कैन नॉट बी एन आर्बिट्ररी राइट गिवन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस विल हैव टू बी अ वेरी लिमिटेड राइट गिवन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। हमेशा याद रखो, जिसका बहुत सारा पावर रहता है, पैडल में क्या बोलता है? विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये खतरनाक पावर है। ये तो सोच के देखो, एबीसी 3 लोग पार्टनर्स है, सी उनका राइवल है, डी ई एफ उनका खुद का पार्टनरशिप फॉर्म है, इधर एबीसी का पार्टनरशिप फॉर्म चालू है, उधर डीएफ का पार्टनरशिप फॉर्म चालू है। डी का एक भाई है जो कोर्ट में जज करके काम करता है। समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? एबीसी का पार्टनरशिप फॉर्म अच्छे से चालू और उसको कम्पीट करना पॉसिबल नहीं है। दे आर एक्सेलेंट इन देयर वर्क। डीएफ को आगे जाने को नहीं मिल रहा है, ये अपने भाई को क्या बोलता है? टांगड़ा हो जाएगा ना गड़बड़। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वी डोंट वांट टू गिव दिस अनलिमिटेड अथॉरिटी। इवन व्हाई टू लुक एट स्पाइडरमैन, इवन लुक एट आवर हनुमान। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हनुमान? उसको बहुत सारा पावर्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, कुछ भी कर सकता है। बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पर्वत को उठा सकता है, उड़ सकता है, आग लगा सकता है, उसको बड़ा कर सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनीथिंग ही कैन डू, एनीथिंग ही कैन। सुपरमैन स्पाइडरमैन से भी आगे, लेकिन भूल जाता है सब चीज पावर, उसको याद दिलाना पड़ता है ये पावर तुम्हारे पास है करके। इट कैन नॉट बी यूज्ड एवरी टाइम। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज अ वेरी स्पेशल पावर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ना, ये ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस इट कैन बी डन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो। जो भगवान को एक जगह से दूसरी जगह पे पूरे पर्वत को उठा के लेके आना पॉसिबल था, उसको सीता मैया को भी उठा के लेके आना पॉसिबल था, बट नहीं अंडरस्टैंड दैट नहीं बाबा ये अपने को करने का नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो कब करने का, कौन सा चीज कब करने का, उसका कुछ रूल्स है, वो रूल्स अपने को फॉलो करने का। तो फर्स्ट वन कौन सा है? वॉलंटरी। यू स्टार्टेड, यू स्टॉप, इट्स ओके। सेकंड वन कौन सा है? यू स्टार्टेड बट कोर्ट इज गोइंग टू स्टॉप, नॉट इन एवरी सिचुएशन, इट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अभी यू स्टार्टेड, यू स्टॉप, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। सर ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ सकता है? हम नहीं स्टार्ट किया, हम नहीं बन के, आपको क्या प्रॉब्लम? दैट इज नॉट द केस। मेनी टाइम्स इट मे सो हैपन इफ यू हैव सीन सम कोर्ट रूम ड्रामास एक्सेट्रा। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फैमिली मैटर्स, husband and wife they decide to go for divorce. Sometimes it may so happen that one of the partner, either the husband or the wife, wants to give trouble to the other partner seeking divorce and can go on dragging the entire system. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? So that particular situation is not something which we want here. And at the same time, in that relationship, there are only two parties which are involved. वहां पे भी कोर्ट को क्या याद रखना पड़ता है? उनके बच्चे रहेंगे तो बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाएगा, वो सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। One family is getting dissolved, one family is getting divorced, it doesn't mean it is only the situation between those two parties. It is also going to have impact on the child. So court is required to take into account not only the will and wishes of the husband and wife, but also take into consideration the future of the child. ये सब चीजों को देखने के बाद में हम सिस्टम को डिजाइन करके रखते हैं। यहाँ पे तो और खतरनाक चीज है, यहाँ पे तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि शायद 10 पार्टनर रह सकते हैं, 50 पार्टनर रह सकते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी का रूल कंसिडर करने का कि नहीं करना, कोई भी शेयर आ सकता है। अगर वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों के पास एक एक वोट होने के बावजूद भी वो सिचुएशन को ड्रैग कर सकता है। अगर हस्बैंड को लगता है वाइफ को तकलीफ देना है, वाइफ को लगता है हस्बैंड को तकलीफ देना है, तो ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे तो 50 लोग हैं, जितने ज्यादा, टू मेनी कुक्स एंड इट इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड नाउ, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर डिसोल्यूशन। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इन दैट केस वो स्पॉइलिंग का डिफिकल्टी बाकी सब पार्टनर्स को नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना एमिकेबली अपने को दूर जाने की मदद करना चाहिए। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सो हमने अगर 50 लोगों को साथ में आके एक फैमिली चालू करो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इसका परमिशन दिया है, तो हमको उस परमिशन में से बाहर निकलने के लिए क्या करने का, उसका भी सिस्टम डिजाइन करके देना पड़ेगा। सो द पार्टनरशिप एक्ट टेल्स यू फर्स्ट सिचुएशन, dissolution without order of the court or voluntary dissolution, it consists of following 4 ways. Dissolution by agreement. The firm may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with the consent of contract between the partners. Section 40 gives the right to the partners to dissolve the partnership by agreement with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners. The contract between the partner means contract already made.
तो पार्टनरशिप चालू करने के पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, दिस पार्टनरशिप इज ओनली फॉर 6 months और दिस पार्टनरशिप ओनली फॉर 6 years। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व, 6 साल पूरा हो गया, चलो लेट अस एग्री टू डिसॉल्व। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो ये काम पूरा करना है हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व करने वाला, तो ठीक है काम पूरा हो गया, लेट अस डिसॉल्व, दे आर अगेन एग्रीइंग बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड अर्लियर। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अर्लियर एंड नाउ दे आर एग्रीइंग टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो फर्स्ट वन कौन सा है? एक तो अभी म्यूचुअली डिसॉल्व करेंगे, मतलब पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखा था, लेकिन एट विल है, तो साथ में से बोल रहे बस हो गया, अभी इतना काम करके अच्छा हो गया, बट इट सीम्स दैट थिंग्स आर चेंज नाउ एंड इन द चेंज एनवायरनमेंट प्रोबब्ली वी आर नॉट परफेक्टली फिट फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द कस्टमर्स। तो अभी साथ में ट्रैक करने का कुछ मतलब नहीं, उससे अच्छा अभी हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी को यूज करके बंद कर दें एमिकेबली, डिसाइडिंग टू डिसॉल्व बिकॉज दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू compete in the business, possible। नहीं तो पार्टनरशिप करते वक्त ही एग्रीमेंट करके रखा था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था किसको कब डिसॉल्व कर सकते हैं, और बाद में फिर वो पॉइंट आया तो फिर से एग्री करते हैं कि लेट अस एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज मेड बाय अस इन द पास्ट। इसको क्या कंसीडर करने का? सेक्शन 40 कंसीडर करने का, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट में बी डन इमीडिएटली नाउ और दिस एग्रीमेंट में बी डन टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज डन इन द पास्ट। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41। फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड by adjudication of all partners or of all the partners but one as insolvent। यहां पे कोर्ट ने कुछ टांग नहीं अड़ाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक हो गया। पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनरशिप ए बी एंड सी, उसमें से ए बी एंड सी तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, पर्सनल प्रॉपर्टी में इंसॉल्वेंट हो गए, फॉर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, ए एंड बी इंसॉल्वेंट हो गए, सी अभी भी जिंदा है और सॉल्वेंट है, सॉरी उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि 3 पार्टनर्स है और तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट या फिर 3 में से एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट, तो भी हम बोलेंगे द फॉर्म इज नाउ गोइंग टू गेट डिसॉल्व। हाँ सर उल्टा हो गया तो ए एंड बी सॉल्वेंट है, सी अकेला इंसॉल्वेंट है, तो फॉर्म कैन स्टिल कंटिन्यू, तो फॉर्म कैन स्टिल कंटिन्यू। ऑल बट वन या फिर ऑल आर इंसॉल्वेंट, देन द फॉर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? either all or all but one, then the firm is dissolved। Next part, by happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry on in the partnership। दो अलग अलग सिचुएशन, एक कौन सा है? happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on। मतलब जो बिजनेस तुम कर रहे हो वो बिजनेस इसके पहले करना अलाउड था, बट गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया और बोला अभी ये बिजनेस करना अलाउड नहीं है। सिंपल। कैन द गवर्नमेंट डू दैट? यस, गवर्नमेंट हैज गॉट एवरी अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट टू हैपन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो गवर्नमेंट का अथॉरिटी किधर से आता है? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सॉवरेन। सॉवरेन म्हणजे काय? सार्वभौम। मराठीत काय म्हणतात? सार्वभौम। इंग्लिश में क्या म्हणतात? सॉवरेन। उसको अथॉरिटी किसने दिया था? हम सब ने मिलकर दिया। दैट इज कॉल्ड एज सॉवरेन रिपब्लिक, इट्स नॉट सॉवरेन किंगडम। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? किंगडम में क्या होता है? किंग इज सॉवरेन। उसके दिमाग में जो मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको किसने अथॉरिटी दिया पूछने का नहीं। बट वी आर लिविंग इन रिपब्लिक, तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग अपने गवर्नमेंट को अथॉरिटी देकर रखते हैं कि तुमको ये सब काम करने को अलाउड है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बिजनेस करना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला था महाराष्ट्र में कि डांस बार बंद करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज हैविंग बैड इम्पैक्ट ऑन द यूथ एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। इट इज नॉट अलाउड इन महाराष्ट्र। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अनलॉफुल। गवर्नमेंट ने नया लॉ पास कर दिया। गुजरात में जाओगे तो दारू बेचना अनलॉफुल। कैन गवर्नमेंट डिसाइड? यस, गवर्नमेंट कैन डिसाइड दैट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे बिजनेस को अनलॉफुल बोल दिया रहेगा तो अभी तुमको तुम्हारा फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब तक अलाउड था, अब नया गवर्नमेंट आ गया, उन्होंने नया रूल लाया, उसकी वजह से अनलॉफुल हो गया, तो अभी तुम्हारा बिजनेस तुमको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। फॉर्म विल हैव टू गेट डिसॉल्व। या फिर गवर्नमेंट बोल सकते कि बिजनेस लॉफुल है, हम बिजनेस को बंद नहीं कर रहे, ये चीज मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे, बल्कि ये चीज करने के लिए फॉर्म नहीं चालू करना, कैसा बोल रहे। तो ये बिजनेस करने का रहेगा तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर सकते, ये बिजनेस करने का तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी चालू कर सकते, ये बिजनेस करने का तो आप ट्रस्ट कर सकते, ये बिजनेस करने का तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते, ये बिजनेस करने का तो प्रोप्राइटरी बिजनेस चालू कर सकते। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस वी आर रिजर्विंग इट ओनली फॉर प्रोप्राइटरी बिजनेस। ऐसा गवर्नमेंट ने नया रूल लाया तो मतलब बिजनेस इज नॉट अनलॉफुल,
but to carry on the business in partnership is unlawful. समझ में क्या मतलब? That is the second situation. Second situation क्या है? और for the partners to carry it on in partnership. Partnership में करना अलाउ नहीं. एक तो बिजनेस से अनलॉफुल हो गया, या फिर बिजनेस लॉफुल रहने के बावजूद उसको पार्टनरशिप में करना अनलॉफुल हो गया रहेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज नॉट बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. नहीं सर, गवर्नमेंट ने बोला. गवर्नमेंट अलग है, कोर्ट अलग है. कोर्ट मतलब क्या? झगड़ा हुआ था, झगड़े को सॉल्व करने के लिए कोर्ट के पास गए थे और कोर्ट ने बोला बस उससे अच्छा फॉर्म को डिसॉल्व करो. दैट इज कॉल्ड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. यहाँ पे हम लोग झगड़ा वगैरह कुछ हुआ ही नहीं. गवर्नमेंट ने नया रूल लाया, काम खत्म हो गया. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया, काम खत्म हो गया, कोर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. आई होप यू रिमेंबर देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? जुडिशियरी डायरेक्टली पहला. बाबा लोग, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है, 12वीं पूरा हो गया तुम लोगों का, सिविक्स विविक्स कुछ सीखा कि नहीं सीखा जिंदगी में? अरे तुम लोग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मेडिकल का अगर स्टूडेंट रहेगा, बोलेगा नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ उसको नहीं आता करके. कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं आता, कैसे चलेगा? यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स. साइंस का बच्चा बोलेगा मुझे नहीं आता, मैं साइंस वाला है. आर्ट्स का बच्चा बोलेगा मैं आर्ट्स वाला, मुझे नहीं आता. कॉमर्स का बच्चा बोले सर हमको तो पता नहीं है, हम तो रील्स देख रहे थे करके. ऐसे थोड़ी चलता है. तुम लोग बिजनेस करने वाले हो ना, तुमको तो पता रहना चाहिए जिस कंट्री में बात करते हैं उस कंट्री का सिस्टम कैसे चलता है करके. फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, सेकंड वन एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन जुडिशियरी. लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक द लॉज. वो किधर बनता है? पार्लियामेंट में बनता है. दूसरा कौन? एग्जीक्यूटिव. उसका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉज. एग्जीक्यूट द लॉज नहीं, टू इम्प्लीमेंट द लॉज. ओके. तो तीसरा कौन? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. काम एग्जीक्यूटिव का है. उसका काम नहीं है. तुझे क्या लगता है जस्ट शाम को रात को निकलता है, जागते रहो करके? हाँ, पहले दर्ज जैसा. उनका काम नहीं है इम्प्लीमेंट करना. टू हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट आएगा तो ही. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जुडिशियरी ने जो बोला, सॉरी लेजिस्लेचर ने जो बोला हुआ है वो, और एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो, शायद इसमें अगर कुछ गड़बड़ होती रहेगी तो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने पास किया ऐसा करो, बट गवर्नमेंट बोलेगा मतलब क्या करेगा? गवर्नमेंट अल्टीमेटली शब्दों में लिख के रखेगी जो कानून पास किया है. शब्द है भाई, इंग्लिश है, और उसका मतलब कितने बार चेंज होते जाता है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है, एक तो उनका फॉर्मेशन मिस्टेक हो सकता है बोलने का टाइम. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेजिस्लेचर का ही जब वो सेंटेंस को लिखते जा रहे थे उनका फॉर्मेशन मिस्टेक हो सकता है. ऑल्दो दे मस्ट हैव टेकन अटमोस्ट केयर व्हाइल ड्राफ्टिंग द लॉ, बट स्टिल देयर विल बी सम मिस्टेक्स देयर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सेकंड, देयर इज नो मिस्टेक देयर, बट आफ्टरवर्ड्स द पर्सन हु इज रीडिंग इट अल्टीमेटली इज अ पर्सन. आईएएस ऑफिसर रहेगा तो भी क्या महालायक नहीं रहो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही सकता है. उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है. इंटरप्रिटेशन सही किया तो भी इंप्लीमेंट करने के टाइम उसके हाथ से गलतियां हो सकती. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? भाई ऐसा रूल है, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम माय कम्युनिटी एंड दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम माय कम्युनिटी. आई मे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ पर्सन फ्रॉम माय कम्युनिटी. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो although I am trying to implement a law, but I am not implementing it in a just manner. I am implementing probably in an unjust manner. और सामने वाले कैसे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है, अभी तो मुझे कुछ ना कुछ दे दे, और वो देगा नहीं है, तो मैं जानबूझ के अपना पोजीशन को यूज करके उसको अटका के रखता हूँ. तो ये सब सिचुएशन में तुम लेजिस्लेचर के पास नहीं जा सकते. देन यू हैव टू गो टू जुडिशियरी. जुडिशियरी क्या देखेगा कि लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था, और लॉ मेकर का इंटेंशन प्लेंटिफ को पता है कि डिफेंडेंट को पता है. हु इज ऑन द साइड ऑफ लॉ मेकर्स, वो डिसाइड करने का जिम्मेदारी किसके? जुडिशियरी का. तो हमेशा याद रखो जुडिशियरी के पास कब जाने का रहता है? झगड़ा हुआ तब जाने का रहता है. तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट मतलब झगड़ा होने के बाद. यहाँ पे अभी तक झगड़ा चालू नहीं. पहला केस क्या था? बाय एग्रीमेंट. दूसरा केस क्या था? बाय ऑपरेशन ऑन इट्स ओन. कौन सा वाला सिचुएशन था? नंबर 1 व्हेन आइदर ऑल और all but one partners have become insolvent. और दूसरा क्या? when either the business itself has become unlawful or it is not permitted to carry on the business in partnership, then your partnership automatically gets dissolved. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, डिसॉल्व हो गया, बस काम खत्म. नेक्स्ट पॉइंट. A firm is carrying on a business of trading in a particular chemical and a law is passed which bans the trading of such particular chemical. The business of the firm becomes unlawful and so the firm will have to compulsorily get dissolved. Dissolution by happening of certain contingencies. Subject to the contract between the partners, a firm can be dissolved on the happening of any of the following contingencies. Number 1 क्या है? When the firm is constituted for a fixed term on the expiry of that term.
where the firm is constituted to carry out one or more adventure or undertaking, then by completion thereof, or by death of a partner, or by adjudication of a partner as an insolvent. एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो गया तो भी हम फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट ये सब क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. कितना अलग अलग सिचुएशन बोला है? 4. एक कौन सा? when the firm is for fixed term, then upon completion of the term. दूसरा कौन सा? when the firm is for a particular purpose, then completion of that purpose. तीसरा कौन सा? death of a partner. और चौथा कौन सा? insolvency of any one partner. But they can agree कि हमको कंटिन्यू करना है सेपरेटली. In that case it is allowed. Then we will not say that नहीं अभी तुमको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा. Next one is resolution by notice of partnership at will, where the partnership is at will. Section 43 बोलता है where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm. So this is an extraordinary power. 50 लोग हैं तो कम से कम 26 लोगों ने नोटिस देना चाहिए कि डिसॉल्व करने का है, तो बाकी के 24 लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला हुआ है. Anyone, मेरा क्या सबको, what have they told? Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner, by majority of the partners बोला हुआ नहीं, by any partner बोला हुआ. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? By any partner giving notice in writing. और नोटिस कैसे देने का? ओरल नोटिस नहीं देने का. कभी कभी पार्टनरशिप का डिस्कशन करने के टाइम मीटिंग में आपस में झगड़े हो सकते हैं और झगड़े में चल मुझे पार्टनरशिप बंद करने कैसे बोलेगा, तो इमीडिएटली वो तलाक जैसा सिचुएशन नहीं, गलती से बोलते तो हो गया. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज नॉट द वे इन व्हिच इट विल बी काउंटेड. That is how it is interpreted many times for Islam religion. That may not be the true sense of Islam. That's a different story. But अपने को याद क्या रखना है? I'm just giving you an example to understand how it is interpreted. तो भैया उन्होंने clearly बोल के रखा है, आपको ऐसा कुछ बोलने का रहेगा तो ऐसे बोलो मत, आपको राइटिंग नोटिस देना. और नोटिस किसको देने का? Notice in writing to all the other partners. He considered, sir, I have given notice to 50 लोग है सर, 50 लोगों को कौन देगा? मैं 30 लोगों को दे दिया, बस बाकी लोगों को अपने आपस में कर लेंगे. That is not the case. If you want to dissolve, then you will have to give notice to all the other partners, and that should be in writing. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So ये याद रखने का 2 अलग चीज है. अगर तुम उस पार्टनर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसको फॉर्म डिसॉल्व करने में इंटरेस्ट है, तो तुमको बोलना पड़ेगा भैया सबको नोटिस देना राइटिंग में. और अगर तुम बाकी के पार्टनर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमको सिर्फ देखने का है कि उसने सच में सबको नोटिस दिया कि कुछ लोगों को नोटिस देके रखा हुआ है, तो देन if he has not given notice to all, then you can always say that his notice is invalid and the firm is not going to get dissolved. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? And you can help other partners to secure the partnership firm in a more proper manner, so that the partner who wants to dissolve the firm should not run away with majority of the assets of the partnership firm. ये बहुत important point है कि number 1, at will gives you a feeling that it is perpetual, but at will is in reality a situation that it can be dissolved at any point of time. मतलब आज चालू करके कल भी डिसॉल्व हो सकता है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आज चालू किया, तुम्हारे सबके पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल को यहाँ पे लाया, 1 महीने के अंदर डिसोल्यूशन का नोटिस देके भी सबको फिर से पर उड़ा सकता हूँ. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? So you have to be very careful, especially if you are interested in introducing your own immovable property in the partnership of the past. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो समझ तुमने कोई जगह परचेस करके रखा था, ये तो पौड रोड के वहां पे, नहीं तो किसी और जगह, बहुत पुराने जमाने में, कितना 10 रुपए में, नहीं तो 1 लाख रुपए में, उसका आजकल करके मशा और 50 लाख हो गया रहेगा, तो 1 करोड़ हो गया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल. और तुम बोलते हो ठीक है मैं उसको पार्टनरशिप में लेके आता हूँ, मैं बोलूंगा लेके आओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखो फिर पार्टनरशिप में लेके आने के टाइम तुम्हारे पास का बुक वैल्यू को लेके मत आओ. तुम्हारा बुक वैल्यू कितना है? 10,000, उसका आजकल का वैल्यू कितना है? 1 करोड़, तो तुम्हारा कैपिटल 1 करोड़ का होना चाहिए. याद रखो, उसको 10 लाख पे लेके मत आओ, 10,000 पे लेके मत आओ, वरना गड़बड़ क्या होगी? बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप व्हिच इज एट विल. सो आज तुमने 10,000 में लेके आए, तो एंट्री क्या होगा बैलेंस शीट में? लैंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000. और 1 महीने के अंदर अगर बाकी पार्टनर ने डिसाइड किया चलो इसको शेंडी लगा दे, चलो डिसॉल्व करेंगे, और पार्टनरशिप का भी एसेट बन चुका है, इट इज नॉट योर एसेट नाउ. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसमें जो भी कुछ एप्रिसिएशन होगा, उस एप्रिसिएशन के अंदर वो लोग भी सब लोग भागीदार बन जाएंगे, विच इज वेरी डेंजरस थिंग. सर फिर इसमें बाहर कैसे निकलने का? सिंपल, लेके आने के टाइम बोलने का हमारा कैपिटल कितना? 1 करोड़ है, खत्म. एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा? लैंड अकाउंट भी 1 करोड़, तो कैपिटल अकाउंट 1 करोड़, मतलब तुम्हारा क्लेम कितना हो जाएगा? 1 करोड़. अभी उनको बेचने का तो बेचो, 1 करोड़ को बेच के 1 करोड़ मिलेगा, प्रॉफिट है ही नहीं. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो ऑलवेज अप्लाई योर माइंड व्हेन आर यू एंटरिंग इनटू द सिचुएशन, बिकॉज़ एट विल मींस ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहेगा, हमेशा हमेशा अच्छा ही चलेगा. इंटरेस्ट तो वही है, बट एट विल का दूसरा मतलब है कि कभी भी जा सकता है, कभी भी नहीं जाएगा. इसका दूसरा मतलब एक्चुअली क्या है?
कभी भी जा सकता है। एक सिंगल पार्टनर बाकी सबको राइटिंग में नोटिस देगा तो गड़बड़ हो सकती है। Dissolution by notice of a partnership at will. Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm. In case date is mentioned in the notice, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or in case no date is so mentioned, as from the date of communication of the notice. तो नोटिस देगा, उस नोटिस में बोलेगा आज का दिन क्या है, टुडेस डेट इज 11/4, 11/4 आज का डेट है, समझे क्या? तो मैं आज नोटिस दे रहा हूँ बाकी पार्टनर्स को कि अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो हम लोग 30 जून से डिसॉल्व करने वाले। आई एम गिविंग यू नोटिस नाउ दैट द फॉर्म इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड ऑन 30th जून। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? In this case, the form will be dissolved on 30th June. तब तक form is still continue. If on the other hand, I'm just giving a notice that I want the form to get dissolved, and I don't mention the date on which the form is going to get dissolved. In that case, on 11/4, if the date is communicated, the notice is communicated, it will be considered that the form dissolution has taken place on 11th itself. आपको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Is it clear to all of you? This is a very very powerful situation. आपको मैंने पार्टनरशिप का स्टार्टिंग पॉइंट बोला था, अब मैं पार्टनरशिप का एंड बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोला था हमने? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर। तो एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं, तो चालू करने के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे, लेकिन जो चालू हो चुका है उसको बंद करने के लिए एक भी काफी है। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम? तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि तुमने एडविल का पार्टनरशिप क्रिएट किया हुआ। एडविल का मतलब क्या हो गया? बाकी पूरा बॉडी मस्त से एकदम चल रहा है, बट हार्ट रुक गया, बस खत्म। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बोला सर बाकी बॉडी पार्ट तो चल रहा है ना, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी क्या है, चालू करने का है तो बॉडी में आंखें भी लगेंगी, हाथ भी लगेंगे, लीवर भी लगेगा, हार्ट भी लगेगा, सब चीजें लगेंगी। चालू करने के लिए एग्रीमेंट सबका, बंद करने के लिए एक पॉइंट हो गया तो खत्म, बिकॉज इट इज एट विल। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। और तुम्हारा फोन वोन का जनरेट नहीं है, वो इट इज नॉट एट विल, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बैटरी जब तक चार्ज है तब तक, समझा ना? मैं बैटरी डाउन हो गया तो अंदर बंद पड़ जाता अपना। यू आर ऑलरेडी नोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि उसका 100% के 60% के 70% हमारा तुमको फिर से चार्ज करते बैठना पड़ता है। हम लोग को चार्जिंग कैसा, रात को सोएंगे तो चार्जिंग, बराबर ना? और ठीक ठाक खाना खाएंगे तो चार्जिंग, वरना तो कुछ है नहीं। और रात को सोएंगे तो क्या करना पड़ता है? क्लास में आके सोना पड़ता है, बराबर ना? यहाँ पे थोड़ा इजी जाता है, एसी वैसी चलता रहता है, सर का आवाज सुनता रहता है, तो इट्स इजी ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 कलम 44 काय सांगते बघा लास्ट बेंच? ते सांगताय की आपण डिसोल्यूशन कसं करूया? बाय कोर्ट करूया। कोर्ट at any suit of a partner dissolve the firm on any of the following ground। तो जो दूसरे ने चालू किया है उसके बीच में कोर्ट टांग अड़ाने को कब आने वाला है? सबसे पहले बोल के रखा है एट द सूट ऑफ द पार्टनर। तो डिसोल्यूशन जब कोर्ट करने वाला है तो वहां पे जरूरत क्या है? सूट शुड बी फाइल्ड फर्स्ट। इफ देयर इज नो सूट, कोर्ट इज बेसिकली नॉट गोइंग टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 44। एंड देन the first sentence at least is telling us that the suit should be by a partner. So who is filing the suit? Partner is filing the suit. Then the court is coming into picture on the following ground. किसके लिए? Insanity or unsound mind, or permanent incapacity, or misconduct, or persistent breach of agreement, or transfer of interest, or continuous or perpetual losses, or just and equitable grounds. So these are the different things. If they are in existence, then the court may decide कि हम लोग अभी बीच में आपको ऑर्डर देंगे, बोलेंगे कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। कौन सी चीजें कंसीडर की है? इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड। वेयर अ पार्टनर हु इज नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में डिसॉल्व द फॉर्म ऑन अ सूट ऑफ द अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेन पार्टनर। टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। उसको कभी कभी गुस्सा आता है, दिमाग सटक जाता है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब दिमाग सटकता है तो उसको कुछ समझ में आता नहीं क्या करने का क्या नहीं करना। तो हम बोलेंगे इसको इंसान नहीं बोलते। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तुमको कॉन्ट्रैक्ट में भी सिखाया हुआ रहेगा लूसिड इंटरवल का कंसेप्ट। लूसिड इंटरवल याद है क्या? लूनाटिक, उसमें अलग अलग सिचुएशन रहता है। एक क्या, हमेशा पागल कभी कभी अच्छा, दूसरा क्या, कभी कभी पागल हमेशा अच्छा। तो जब वो अच्छा रहते तभी उसने किया कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलना पड़ता है। एंड इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू क्लेम दैट ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त मैं सेल नहीं था,
In that case, the burden of proof is on the person who is trying to claim insanity. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? वैसे यहाँ पे बोल के रखा हुआ है कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर इंसेन हो गया तो कोर्ट के पास जाने का नहीं कि फॉर्म को डिसॉल्व करो. कोर्ट बोलेगा ये क्लॉज कब यूज करने का? When the working partner is getting insane. Who can file the case? Other partners can file the case, or the next friend of the unsound person can file the case. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बाकी के पार्टनर्स क्या बोल रहा है कि नहीं ठीक है वो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एबीसी 3 पार्टनर्स है, ए वर्किंग पार्टनर है, बी एंड सी स्लीपिंग पार्टनर्स है. ए को पागलपन के दौरे आने चलोगे, उसको बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, उसका समझ में काम कैसे करने का करके, और वो सच में घर पे भी तकलीफ दे रहा है, सब चीजों को डिफिकल्टी करते जा रहा है. बी एंड सी क्या बोलते हैं? रहने दो, चलेगा. थोड़ा सा कभी भी प्रेशर आता है, आदमी ऐसा कर देता है, उसमें क्या बड़ी बात है, रहने दो, उसको काम करते रहने दो. But the psychologist has also told, doctors have also told that he will have to be taken away from the partnership firm to regain some sanity. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये लोग बोलते हैं सर लेकिन हमको नुकसान हो जाएगा, रहने दो, उसको काम करते रहने दो. अभी क्या कुछ दिन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या समझता है? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो in that case there is a chance that he may find it very difficult. और तुमने क्या बोला है? कोर्ट तभी बीच में टांग अड़ाएगा जब पार्टनर ने केस फाइल किया हुआ. अभी अनसाउंड माइंड का जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसने केस फाइल किया तो चलेगा क्या? चलेगा. बट ही इज नॉट अ पार्टनर, दैट इज ओके. तो वर्किंग पार्टनर को अगर पागलपन के दौरे आने चालू हो गए तो इन दैट केस बाकी के स्लीपिंग पार्टनर्स कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, भैया इसको हटाओ, ये सुनता नहीं हमारी बात, कुर्सी में बैठा लेकिन पागल है. क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? ये एक सिचुएशन. तभी केस कौन फाइल करेगा? स्लीपिंग पार्टनर. और दूसरा केस स्लीपिंग पार्टनर बोल रहे पागल है तो रहने दो यहाँ पे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहा है और आगे चल के हमको फायदा हो ही जाएगा. तो वो अनसाउंड माइंड के पर्सन को, फैमिली को, उसके फ्रेंड्स के पास ताकत दिया हुआ है कि दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्दो दे आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्पस ऑफ कंपल्सरी डिवोर्स. समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूं? ओके. नेक्स्ट पार्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी. व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर suing, when a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner, then the court may dissolve the firm. Such permanent incapacity may result from physical disability or illness. कैंसर हो गया, 4th स्टेज का कैंसर तक पहुंच गया, बोलता नहीं हो सकता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ब्लाइंड हो गया और पार्टनरशिप का बिजनेस कौन सा था? एरोप्लेन चलाने का. क्या बोल रहा है? कलर ब्लाइंड हो गया, अभी सिग्नल दिखता नहीं तो क्या करेगा? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. तो आइदर देयर इज इलनेस और देयर इज परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी, देन द कोर्ट में फाइल द केस. बट ये सॉरी कोर्ट में गिव द जजमेंट दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व. लेकिन ये केस किसने फाइल करना चाहिए? वेयर अ पार्टनर अदर देन द वन हु इज suing has become in any way permanently incapable. तो जो इनकेपेबल है वो खुद केस नहीं फाइल कर रहा है, बल्कि बाकी के लोग केस फाइल कर रहे हैं, बाकी के पार्टनर फाइल कर रहे हैं. ये इनकेपेबल होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा दो. ओके. नेक्स्ट पार्ट, मिसकंडक्ट. वेयर अ पार्टनर other than the partner suing is guilty of a conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business, the court may order for dissolution of the firm by giving regard to the nature of business. It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of the business. The important point is the adverse effect of misconduct on the business. In each case, nature of business will decide whether an act is misconduct or not. So कोई एक पार्टनर जिसका बिहेवियर बाकी पार्टनर के हिसाब से लग रहा है कि वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं है, मिसकंडक्ट है, तो इन दैट केस द अदर पार्टनर्स हु आर ऑफ द ओपिनियन दैट वन ऑफ द पार्टनर इज डूइंग मिसकंडक्ट कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन टेल द कोर्ट ऑफ लॉ दैट द कोर्ट शुड पास अ जजमेंट or an order for the dissolution of the partnership firm. At that time, the court will first of all check कि आप जो बोल रहे हैं कि मिसकंडक्ट है, सचमुच में इस मिसकंडक्ट की वजह से पार्टनरशिप फर्म को रेपुटेशन को धक्का पहुंचेगा क्या? पार्टनरशिप फर्म का नाम खराब हो जाएगा क्या? पार्टनरशिप फर्म के लिए लोगों के मन में प्रेजुडिस क्रिएट हो जाएगा क्या? प्रेजुडिस मतलब क्या? पूर्वग्रह, ये मतलब अरे ऐसा ही है बस, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस. तो ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा क्या? एंड अल्टीमेटली उसके से पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट को धक्का पहुंचेगा क्या? अगर ऐसा होता रहेगा तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, फिर उसका जो मिसकंडक्ट है वो सिचुएशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देंगे. लेकिन जरूरी क्या है? देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, इसको मिसकंडक्ट बोलो, ऐसा कुछ परफेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ नहीं. द कोर्ट विल ऑलवेज चेक ईच एंड एवरी सिचुएशन सेपरेटली कि सच में मिसकंडक्ट है कि नहीं. देयर इज नो वन सिंगल सिचुएशन व्हिच इज कंसीडर्ड एज मिसकंडक्ट हियर. इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. ओके. Persistent breach of agreement.
where a partner other than a partner suing willfully or persistently, बाबा लोग willfully and नहीं बोला हुआ है, willfully और बोला हुआ है, मतलब जानबूझ के एक बार किया तो भी ठीक, या फिर गलती से बार बार किया तो भी ठीक, एक ही गलती बार बार दोहराता है तो बोलते हैं सर willfully नहीं है ना, हो जाता है कभी कभी, है तरह कभी कभी रोज होता है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भी नहीं चलेगा. Are you getting the point what I'm trying to specify? Number one, willfully, or number two, persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the partnership firm or the conduct of its business, or otherwise so conduct himself in matters relating to the business that it is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in the partnership with him. Then the court may dissolve the firm at the instance of any of the partners. Following comes to the category of breach of contract. एक क्या embezzlement, चोरी करता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ, फर्म का एसेट्स घर पे लेके जाता है, यूज करता है और वापस नहीं करता है. परचेस करने का टाइम फर्म का, लेकिन घर पे लेके जाता है, स्टॉक उठा के लेके गया, पैसा नहीं दिया, अकाउंट भी डेबिट करने को देता नहीं है, ड्रॉइंग का एंट्री भी करने को देता नहीं है, अकाउंटेंट को समझना नहीं चाहिए, इसके लिए चुपचाप से चुपके से लेके जाते हैं, वो सीसीटीवी में दिखा हमको कि यार हमेशा लेके जाता है. एम्बेजलमेंट और कीपिंग इरोनियस अकाउंट, जानबूझ के गलत अकाउंट से रिकॉर्ड करता है. चलो चल रिकॉर्ड करो, ड्राइंग है ना, ड्राइंग रिकॉर्ड करो, लेकिन याद रख मैं कितना लेके गया हूँ, 100 किलो लेके गया हूँ, लेकिन लिखने का कितना 50 किलो. सो ड्राइंग का एंट्री हुआ क्या हुआ, बट पूरा नहीं हुआ. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. विलफुली इज डन, देन इवन इफ इट इज डन एट वन इंस्टेंस तो भी द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय अदर पार्टनर्स बाय गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और नॉट विलफुली डन बट परसिस्टेंटली डन. उसको बताने के बावजूद भी वही ठीक करते बैठता है. हम बोलेंगे ठीक है फिर अभी तुझे समझ में आता नहीं, तो इट इज बेटर फॉर अस नॉट टू कंटिन्यू विद यू. नेक्स्ट, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, अल्टीमेटली हमको म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है, और याद रखो बैंक में पैसा रहेगा तो बहुत इजी हो जाता है. हाथ में कैश मतलब बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि कैश का स्पेशलिटी क्या है, जिसके हाथ में कैश गया उसका हो गया. आई प्रॉमिस टू पे द बेयर, ऐसे ही ना, उसका किसी का नाम छपा हुआ नहीं रहता. सो कैश इज अ वेरी डेंजरस थिंग. इसके लिए जब तुम पार्टनरशिप का बिजनेस करने का कोशिश करते हो, यहाँ पे तुम्हारे जो पार्टनर्स है वो तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहेंगे, जिनको तुमने बचपन से देखा हुआ है, वो सेम भगवान पे विश्वास रखता है, आपके जैसा वेज नॉनवेज खाना खाता है, ऐसे सब चीजें तो है नहीं. आप उनको रोज मिलोगे इसका भी गारंटी नहीं है. देयर इज अ सेंस दैट योर पार्टनर में बी इन अदर सिटी एंड यू में बी इन अदर सिटी. यार समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ. एंड फर्म का बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है. अभी वहां पे कस्टमर ने कैश दे दिया, कस्टमर ने कैश है तो अपना हीरो क्या करता है, कैश अपने पास ड्रॉअर में रखता है उधर. हम बोले कि देखो हमने क्या बात किया हुआ है, डेली मैक्सिमम कैश बैलेंस व्हिच वी कैन गिव इज ₹5,000, क्योंकि अपने पार्टनरशिप बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कभी कुछ कैश लगेगी तो मैक्सिमम 5,000 तक का कैश सफिशिएंट. उसके ऊपर पेमेंट करने का तो वी ऑलरेडी एग्रीड दैट वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट बाय चेक और बाय यूपीआई वगैरह कुछ तो, बट वी आर नेवर गोइंग टू मेक पेमेंट इन कैश मोर देन ₹5,000. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. और कस्टमर कैसे कैश आ गया, हम ये नहीं बोलेंगे कि कस्टमर कैसे कैश वसूल मत करो. घर पे लक्ष्मी आ रही है, ले लो भैया, कैश नॉट अ प्रॉब्लम, तो कैश आ गई है ले लो, लेकिन बाद में इमीडिएटली डिपॉजिट करो बैंक. डोंट कीप इट असाइड विद यू, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट बाद में चोरी होगी, कैश चली गई. अब तू सच बोलता रहेगा कि सचमुच में चोरी हुई है, लेकिन सामने वाले के मन में आएगा सचमुच में चोरी हुई कि यही उठा के लेके गए. क्या समझ सकते कैसे बोल रहे हो कि झूठ बोल रहा है, चोरी हुई करी, सिर्फ पुलिस का एफआईआर दर्ज करके रखा हुआ है, तो मन में इलमिल आना चालू हो जाएगा. उससे अच्छा हमने एग्री किया है ना, इतना कैश रखने का तो इतना कैश रखने का, उससे ज्यादा कैश रखता है. अब तक चोरी हुई नहीं है, अब तक कैश का हिसाब सब कुछ मिल रहा है, बट हम तुझे बार बार बोल रहे हैं इतना कैश मत रख. हमने एग्री किया हुआ था पहले ही कि हम इससे ज्यादा कैश नहीं रखेंगे, फिर भी तू रखता है. इट इज बेटर फॉर मी नाउ, क्योंकि आज शायद अभी तक कुछ दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन बाद में कुछ हो भी सकता है. Why are you unnecessarily doing this particular thing again and again? Number one, we have agreed that we are not going to keep this cash. Number two, we have told you again and again, don't keep this much cash. Still you are keeping it. That means you are inviting some trouble. We don't want to get burned by the trouble which is invited by you. It is better for us to dissolve the firm. Can you do that? Yes. Next part, refusal to show accounts despite repeated requests. यार हम तुझे बोल रहे हैं अकाउंट दे दे, अकाउंट देता नहीं है, इससे चक्कर अभी क्या करेंगे हम लोग, तुमको डिसॉल्व करने पे कोर्ट के पास जा सकते. If one of the partners keeps erroneous accounts and omits to enter receipts, or if there is a continued quarrels between the partners, or there is such a state of things that destroys the mutual confidence of the partners, the court may order for dissolution of the firm. Next one is transfer of interest, where a partner other than the partner suing has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner. The court may dissolve the firm at the instance of other partner.
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट इमेजिन करने के लिए क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लँड रेव्हेन्यू. लँड रेव्हेन्यू म्हणजे काय, जमीन जर का तुम्ही भारतामध्ये होल्ड करत असाल, इफ यू आर द ओनर ऑफ द लँड इन इंडिया, then you may have to pay certain taxes which are associated to the land. This is not income tax, this is not GST, this is basically property tax. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? I am not talking about the property tax in relation to the building which is constructed on the land. I am talking about land itself. समजतं मी काय म्हणतो ते? त्याची अमाउंट जास्त असेल, त्याची अमाउंट कमी असू शकते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ लैंड इट इज, लीज होल्ड है कि क्या कैसा है वाला करके, कलेक्टर्स लैंड है कि कौन सा वाला लैंड है, उसके हिसाब से उसका रेट्स अलग अलग रह सकता है. अभी अगर वो जो भी कुछ टैक्स है वो तुमने टाइम पे नहीं भरा तो गवर्नमेंट के अथॉरिटी है कि तुम्हारे लैंड को गवर्नमेंट बेच सकता है. नाउ द सिचुएशन इज X is a partner with Y. X is also holding some personal land on which there was some personal tax which is called as land revenue. मतलब वो X को मिलने वाला रेवेन्यू नहीं है, X की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं. तो अपना रेवेन्यू रहता नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहता है. तो लैंड रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को लैंड की वजह से मिलने वाला रेवेन्यू. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो जो भी कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, जो एक्स ने भरना चाहिए था, जिसका पार्टनरशिप का कुछ संबंध नहीं था क्योंकि पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी नहीं था वो, लेकिन वो एक्स ने भरा नहीं, इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके लैंड को बेच के पैसा वसूल करने का डिसाइड किया. तो इधर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बोलते हैं कि बाबा इसके साथ मुझे पार्टनरशिप कंटिन्यू करने का नहीं, बिकॉज इज ब्रेकिंग द लॉ देयर. आई डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट इज द पोजीशन हियर. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सो नंबर 1, आइदर ही हैज ट्रांसफर्ड हिज एंटायर इंटरेस्ट और ही हैज चार्ज हिज एंटायर इंटरेस्ट. सर लेकिन हमने इसके पहले देखा था कि अ पार्टनर कैन क्रिएट अ मॉर्गेज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट. फिर उसको क्या अधिकार रहता है, थर्ड पार्टी को क्या अधिकार रहता है? यस, बट इन दैट केस वी आर सेइंग दैट ऐसा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बाकी के पार्टनर का मैंने परमिशन लेना पड़ेगा कि मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर का गिरवी रखने का, आप उसको डायरेक्टली रिटर्न दिया करो. समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको बाकी पार्टनर कैसे परमिशन लेना पड़ेगा, वो बिना परमिशन के तुम डायरेक्टली चार्ज क्रिएट कर दो उसके खिलाफ, तो दैट इज नॉट अलाउड or sold by the court in the recovery, and has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue due by the partner. तो लैंड रेवेन्यू के खिलाफ प्रोसेसिंग चालू हो गया. तो उसने बोला कि मेरा जमीन को मत बेचो, बल्कि मेरा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो कैपिटल है उसमें से पैसा वसूल करो. बोले यार पार्टनरशिप फॉर्म का पैसा वसूल करो मतलब फॉर्म के पास कैश रहनी चाहिए. फॉर्म के पास कैश नहीं, तूने कोर्ट को खुद ही परमिशन दिया हुआ है, यू कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम माय partnership form. That means you are trying to retire from the partnership form without giving notice to us directly. उससे अच्छा फॉर्म को डिसॉल्व करवा ले. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तो कुछ भी बोलेगा रिवैल्यूएशन करवा लो, अब रिवैल्यूएशन का अमाउंट ज्यादा करवा के लेगा, बाद में हमको फॉर्म कंटिन्यू करने का है, उतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है. इट इज बेटर दैट वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द फॉर्म. सो लैंड रेवेन्यू को पेमेंट करने का है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. लैंड रेवेन्यू का पैसा पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसा कम पड़ रहा है, इसके लिए तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि मेरा फॉर्म के अंदर का जो इंटरेस्ट है वो आप डायरेक्टली ले लो. तो फॉर्म को डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे नोटिस आती है कि योर पार्टनर मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड द लैंड रेवेन्यू एंड टू रिकवर द प्रोसीडिंग्स ही हैज गिवन परमिशन टू अस टू रिकवर द मनी फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म इन रिलेशन टू हिज ओन कैपिटल. सो पे द कैपिटल. हम बोलेंगे फिर इट इज बेटर फॉर अस टू डिसॉल्व द फॉर्म फर्स्ट. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट पार्ट, कंटीन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर आल्सो the court may order for its resolution. यहाँ पे कुछ बोला हुआ नहीं कि the case will be filed by the party. समझ में क्या बोल रहा हूँ? तुम लॉसेस के और लॉसेस करते जा रहे हो, लॉसेस के और लॉसेस करते जा रहे हो, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो तुम निगेटिव करते जा रहे हो. तुम्हारा कैपिटल ऑलरेडी शेयर निगेटिव हो चुका है, फिर भी तुम्हारा पैसा किधर से आ रहा है लॉस करने के लिए? दैट मींस यू आर टेकिंग लोन्स. तो तुम्हारा बिजनेस इज नथिंग बट अ बिग ब्लैक होल व्हिच इज सकिंग एवरीथिंग and eating away all the resources. It is better for the business to be closed. In that case, the court may take an action directly and specify that future में तुम्हारा business चल नहीं सकता है, तुमको चलाने को नहीं आ रहा. It is better that you stop that particular thing. Okay. Next part, just and equitable grounds. Where the court considers any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve the firm. The following are the cases for the just and equitable grounds. Deadlock in the management. ये पार्टनर से तीन बोलते हैं ऐसा, तीन बोलते हैं वैसा. अभी होगा ना इक्वल इक्वल, अभी डिसाइड कैसे करने का? बेटर दैट यू डिसॉल्व. ये सॉल्व होने वाला है नहीं दिखता है, डेडलॉक ही रहने वाला, तो उसका क्या मतलब है? ओके, वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, आपस में इतना झगड़ा कि एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते. इट कैन हैपन इन मैरिज वेयर देयर इज सपोज्ड टू बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ये तो पार्टनरशिप है.
तो यहाँ पे तो बहुत सारा जल्दी से झगड़ा हो सकता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, जो तुम्हारा मेन विश्वास है, जो तुम्हारा मेन बैकबोन है, वही सारा का सारा खत्म हो चुका है, एक दूसरे का विश्वास पूरा पूरा खत्म हो चुका है। ओके, एंड गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज अपना हीरो पार्टनरशिप के एसेट्स को यूज करके गैम्बलिंग करने को जा रहा है। हम बोलेंगे इट इज बेटर दैट यू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग, डोंट कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप्स। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। ये अपने को उन्होंने दिया हुआ है चार्ट, याद रखने के लिए इजी है, उतना पूरा करने का। कल हम डिस्कस करेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, मेरे ख्याल से कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और कल मैं एलएलपी भी चालू करूंगा। आज मुझे लेट नहीं होता तो मेरा ख्याल से टॉपिक पूरा होता था। एक ही प्रश्न, अभी देखते हैं मैडम का क्या लेक्चर है। आई थिंक शी इज टेकिंग लेक्चर।